विज्ञान भवन में आज 10वें दौर की वार्ता थी संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्र सरकार के बीच, जो आज बेनतीजा रही है। और अगली जो मीटिंग की तारीख एक मिल गया, फिर दोबारा एक केंद्र सरकार ने उनको तारीख दी है। 22 जनवरी को ये मीटिंग है वो दोबारा होगी। और कहीं ना कहीं आज 10वें दौर की जो वार्ता है वो भी असफल रही है। तो जो किसान आगू है वो बाहर आने स्टार्ट हो गए हैं विज्ञान भवन से। और इस मीटिंग में काफ़ी चर्चा हुई है, आज एमएसपी पर चर्चा हुई है। और किसान केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि ये जो कानून है वो 2 साल के लिए होल्ड कर देते हैं और एक छोटी कमेटी का गठन कर लेते हैं और वो कमेटी बात करेगी। पर किसान संगठनों ने उस प्रस्ताव को ठकरा दिया था। अब देख सकते हैं कि किसान लीडर बाहर आ रहे हैं। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਰੱਦ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਨੇ। 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ? ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਮਾਂ 12 ਵਜੇ ਨਹੀਂ 12 ਵਜੇ। 12 ਵਜੇ। ਚਰਚਾ ਕੀ ਚਰਚਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੂਗੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰਿਪੀਲ ਹੈ। ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਗਾਂ ਤੋਰੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 1.5 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ 1.5 ਸਾਲ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਆ? 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਆ ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਆਈਸੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਪਿਛਲੀ 26 ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦੇਣ ਕੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ? 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਅਗਲੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਅਗਲੀ मीटिंग होगी। 22 तरीक को 12 बजे अगली मीटिंग जो होगी और केंद्र सरकार के साथ एक और जो मीटिंग है 11वें दौर की मीटिंग है वो होएगी। इसी में विज्ञान भवन पर होएगी और 12 बजे टाइमिंग जो है वो 12 बजे की टाइमिंग है। जो संयुक्त किसान मोर्चे की 11वें दौर की जो वार्ता है। देखिए पूरे मुद्दे जो थे हमारे साथ जो जुल्म हो रहे हैं, चाहे नोटिस के हों चाहे एनआईए के हों, सबकी जानकारी दी है। नोटिस किसानों को मिल रहे हैं उसकी भी जानकारी हमने दी है। मंत्री जी ने कहा कि हमको आप दे दीजिए लिखित कौन कौन से किसानों को दिए गए हैं, हम जांच कराएंगे और इस पर स्टे कराएंगे। कक्का जी देखा जाए सरकार ने 1.5-2 साल का है कि रोक लगा देते हैं, लगता है कि लटकाया जा रहा है आंदोलन उठाने के लिए। देखिए ये तो विचार करने वाली बात है कि कमेटी आएगी, कमेटी एमएसपी पर इस पर तो हमने कमेटी के लिए तो मना किया फिलहाल में, हमको कमेटियों पर कोई भरोसा नहीं है। सरकार फिलहाल जो स्टे की बात कर रही है तो स्टे देने के बाद में दोबारा विचार चलता रहेगा। सर ये बताइए तो इसको बीच का रास्ता कह सकते हैं हम लोग? हाँ इसको बीच का रास्ता कह सकते हैं अपन कि ये रास्ता बीच का निकला है। आप इस पे विचार कर रहे हैं?
कल 12 बजे हमारी सिंगू बॉर्डर पर इस संदर्भ में काफी सर आपको लगता है सर एक सबसे बड़ी चीज आपको लगता है जो किसान बैठे हुए हैं हाँ। उनको आप लोग अगर आपकी कमेटी जो है वो अगर ये मान लेती है कि ठीक है 2 साल की जो सरकार ने प्रपोजल भेजा हम मान लेते हैं, जो किसान सड़क पर बैठा प्रोटेस्ट कर रहा है क्या वो इस बात को मानेगा? क्योंकि रद्द तो हुए नहीं। देखिए वो हमारा ही कार्यकर्ता है ना, उसके ही सामने तो हम कल जो हमने समय क्यों लिया है कि कल 12 बजे हम बैठ के अपने सभी साथियों के साथ में इस पर राय तय करेंगे कि आपका क्या कहना है। उसके बाद हम परसों के दिन सरकार को राय देंगे। 26 तारीख की बात यहाँ कभी नहीं होती है और न आगे भी होगी। 26 तारीख की बात तो हमारी पुलिस के साथ हो रही है, एनआईए को लेकर हुई बात, एनआईए को लेकर बात हुई है। जो कंप्लेंट्स मिली हैं उन कंप्लेंट्स की हमने उनको सूची उन्होंने मांगी है, बोले हम स्पष्ट कराएंगे। काका जी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जो कमेटी है उसको लेकर के कल आप लोग वहाँ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे? हम सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं गए, पहले भी नहीं गए, अभी भी नहीं जाएंगे, आगे भी नहीं जाएंगे। हमारा मुझसे क्या है, जब सरकार से हमारी बात चल रही है तो हम क्यों सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? तो कमेटी का कोई मतलब नहीं, जो हमारे लिए कमेटी कोई मतलब नहीं। आज का ये रहा है कि उन्होंने अपना एक प्रपोजल दिया है कि हम इनको जितने दिन आप कहोगे स्थगित कर देंगे इनको, ये उन्होंने कहा है, ठीक है। और कमेटी बनाने की बात करी है। सर कमेटी किस पे बनाने की बात करी है? सारी चीज़ों पे कमेटी की बात कर रहे हो तो सारी पे जिसको कहोगे उसको बना देंगे कमेटी, और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे देंगे। आज इतनी नरमाई से कैसे क्या प्रेशर पड़े, आज कहाँ से पता करके आए कि सारी चीज़ मान लियो। आज करेंगे तो उसमें करेंगे 23 तारीख में बात। टिकैत साहब आप ये कह रहे थे कि अगली मीटिंग में है हाँ ना में जवाब रहेगा, छोटी सी मीटिंग नहीं ऐसे नहीं, सबसे लंबी चली अब की बात। हाँ लंबी चलती रहे, मीटिंग तो लंबी चले भाई। जब अधिकारी बैठे, सरकार बैठे, पूछताछ करने वाले बैठे, कागज पकड़ाने वाले बैठे, तो लंबी चले मीटिंग। ट्रैक्टर मार्च को लेकर कोई बातचीत नहीं, ट्रैक्टर मार्च थोड़ा इनसे कुछ है, ट्रैक्टर मार्च नहीं के उसमें जा रहे। ट्रैक्टर मार्च तो 26 जनवरी का प्रोग्राम है, बड़े झंडे लगा होंगे। रोड मैप तैयार किया गया, कर लिया, चिंता ना करो, सब गाँव वालों को पता, सब गाँवों में पता है। मैं अपने आप आ जाओ भाई दिल्ली में। 26 जनवरी को क्या डिस्टर्ब करने की पूरी तैयारी? डिस्टर्ब नहीं कर रहे हम, डिस्टर्ब थोड़ा कर रहे। तिरंगा झंडा लगा कर डिस्टर्ब होता है क्या? ये किसने बताया भाई? कौन सी किताब है वो किताब दिखाओ जो आज के दिन 26 तारीख को तिरंगा झंडा ट्रैक्टर पर लगा के डिस्टर्ब थोड़ा होता है। वह किताब दिखाओ कहाँ है, उसे किताब को तो देखने आए। पर्चियों पर क्या बातचीत थी, जो पर्चे हुए हैं? ये सारे आंदोलन का हिस्सा है। मुकदमे ये जो रिपोर्टें हो रही हैं ये सब आंदोलन का हिस्सा है। आंदोलन जब तक यहाँ से किसान नहीं जाएगा, जब तक इन सब चीजों का रास्ता नहीं बढ़ेगा। हाँ एनआईए क्या कहीं बाहर से आ रही, वहीं की है क्या? कोई इंग्लैंड की एनआईए है, यहीं की तो है, ये भी खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी, इस पर क्या जवाब दिया गया? और सारे दोषी कौन है यहाँ पे? सारे निर्दोष तो है। नहीं दोषी कौन सा यहाँ पे? कौन सा ना किसी की भैंस खोल के भाग गई है? हाँ बताओ। उनका तो सरकार करेंगे, उनका जब बातचीत होगी सारी उस लाइन पर बातचीत, उसका तो स्मारक यहाँ बनेगा, बढ़िया स्मारक बनवाएंगे। सर कल ही निकलेगा जो भी कल हम अपनी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग करेंगे और परसों फिर मीटिंग होगी, हम उसको जवाब दे देंगे। और सर आज तक के लिए आप इसके लिए कमेटी बना देते हैं, उसके लिए लंबा टाइम एक मिल जाएगा बातचीत का, विचार करने का, तो वो है उस पर हमने अपनी कल की मीटिंग बुलाई है। कल की मीटिंग में बुला के ही उसके पे आगे बात करेंगे। अभी हम उस पर सहमत नहीं हैं। तो आज एनआईए ने भी आपको नोटिस के बारे में क्या बातचीत जो है केंद्रीय मंत्री के साथ? उसके बारे में उन्होंने कहा कि अगर जिन लोगों के पास नोटिस गए हैं या गलत गए हैं, उनका बेकसूर है, तो वो हमें बताएं। दिल्ली पुलिस के साथ भी बातचीत की है आप लोगों की? दिल्ली पुलिस के साथ 26 तारीख की क्या रूपरेखा आप लोगों की रहेगी? देखिए 26 तारीख की तो जो जैसे रूपरेखा है वैसे ही है। 26 में कोई उसको कोई बदलाव नहीं किया गया उसमें। जैसे अगर प्रोग्राम की जिस तरीके से आप कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसकी बैठक होने वाली है, क्या बैठक में आप लोग जाएंगे? नहीं उस बैठक में नहीं जाएंगे किया, लेकिन वो हमने मानी नहीं है। वो तो उनकी तरफ से प्रपोजल है। हाँ। वो तो विचार तो कल की मीटिंग में होगा ना। 10वें दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੁਝ ਨਰਮ ਜਾਪਿਆ ਜਾਂ ਉਹੀ ਹਟਾ ਹੈ? नहीं नॉर्मल वाली कोई बात ज़्यादा बात नहीं है, जैसा था पहले जैसा ही है करीब, और वो थोड़ा सा स्ट्रकाने वाली बात और कोई ज़्यादा बात नहीं। 2 साल के लिए होल्ड करने की बात कर रहे हैं, उस पर आप लोग क्या स्टैंड है? नहीं अभी कोई स्टैंड नहीं है उस पर, हम अभी तो होल्ड कराने पे हैं। कल की मीटिंग में विचार करेंगे। जैसा भी बातचीत हुई आप लोग की?
जी एमएसपी पे MSP बात हुई है, बस वही कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, उससे आगे नहीं बढ़ रहे। एनआईए को लेकर कोई बातचीत? NIA के उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के नाम गलत आ गए उनका मैं नाम ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ? खाली कार्रवाई नहीं करेंगे ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਾੜਨ ਦਾ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੀ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇਹ ਸਾਰਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਆਪਾਂ ਦਬਾਅ ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ मीटिंग कर लो। नहीं, वो तो हम ही ने कहा है ना, कल की मीटिंग जो है कल अपनी मीटिंग करेंगे तो परसों को उनको बताएंगे। हम ही ने कहा। आज की मीटिंग को किस तरह से देखते हैं? आज के मीटिंग का माहौल थोड़ा ठीक था। सरकार सुबह जितना गर्म था, दिन बढ़ने के साथ साथ उसका गर्मी कम हो गया और आखिर में बातचीत हुआ कि हम लोग पहले बोला जो कानून बनाया, जो झूठे मुकदमा NIA का, उसको क्या किया? तो बोला हम पता किया है, नया कुछ नाम आया तो बोलो हम देखेंगे। तो एक बात हुआ। उसके बाद बात हुआ हम 3 कानून रिपील का मांग किया और सरकार बोला और कुछ बढ़ा दो अमेंडमेंट, हम भी स्वीकार करेंगे और भी बढ़ा भी सकता। तो इसे चर्चा हुआ। आखिर में टी ब्रेक तक कुछ नहीं हुआ। टी ब्रेक के बाद मंत्री आके प्रस्ताव दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में लिखित एफिडेविट देंगे, ये 1.5-2 साल हम इस कानून को बंद रखेंगे, प्रयोग को केप्ट इन एबेंस रख के एक कमेटी बना के ये 3 कानून और MSP के बारे में चर्चा करेंगे और वो कमेटी उस समय में जो रिपोर्ट देंगे सरकार उसको लागू करेंगे। ये प्रस्ताव दिया है। ये प्रस्ताव थोड़ा पॉजिटिव है। तो हम लोग तय किया, कल हमारा 500 संगठन है, सबसे बातचीत फुल डे में करेंगे, करके परसों 12 बजे आके अपना मत इनकार नहीं किया। इनकार नहीं किया। ये प्रस्ताव को हम लेके चर्चा करें। फिर से मीटिंग, हाँ 22 तारीख 12 बजे फिर। हम इस वक्त विज्ञान भवन पर है। केंद्र सरकार और संयुक्त किसान मोर्चे के बीच आज 10वें दौर की वार्ता थी, वो भी समाप्त हुई है और जो 10वें दौर की वार्ता थी वो भी आज बेनतीजा रही है और 22 जनवरी की एक तारीख फिर दे दी गई है और 22 जनवरी को 12 बजे फिर से दोबारा मीटिंग होगी। तो किसानों आज MSP पर चर्चा हुई और जो NIA के नोटिस मिल रहे हैं उस पर चर्चा हुई कि जो निर्दोष लोगों को नोटिस मिल रहे हैं उन पर संज्ञान लिया जाए और सरकार उन्हें वापस ले। और सरकार ने भरोसा दिलाया है कि हम उस पर उस विभाग से चर्चा करेंगे और ऐसे लोग जो निर्दोष है उनसे बोलेंगे कि नोटिस वापस लिए जाएँ। मैं रविंदर सिंह MNTV दिल्ली।